good afternoon to all of you. So we are Good going, afternoon, sir. yeah, good afternoon. We are going to discuss as to whether you should register for the May exam 2026 CFA level 1 or the August exam 2026, because the cutoff date for the early bird registration August is 21st and we are standing on the 17th. If you register for the August exam, the fees is $1140, I believe. And if you register for the May exam, the fees is $1490. So there is a difference which is translating to around 35,000 in Indian rupees. That's the financial part. And the other part is your preparation part. So for that, we have assembled over here. Whether you are an SSCI student or a non-SSCI student, doesn't matter. All are welcome. Okay, we are going to have a elaborate discussion. Now, I kept it a Zoom session instead of a Zoom webinar because I wanted it to be interactive. So I have not muted you all, but we have to do it orderly. So if anybody wants to speak about their situation and the advice they want, so in that case, they raise their hand and I will ask them to speak. Do not straight away start speaking. Mute yourself and only raise your hand if you want to speak. So let me start with Reet. So Reet, you can unmute yourself and you can ask your doubt. Uh, Hi, sir. Hi. I had given my exam in November 25 Okay. and I couldn't qualify. Score And I had 1485. 1485. Are you an Yes, sir. SSCI student? Yes, sir. Okay. Which topic you really fared badly? So fixed income and FSA. Fixed income FSA. What is your Yes, background? sir. So I had completed my BMS in finance. Hmm. But I had completed it in 2020 and then I Hmm. restarted now. Okay, So you're working. I was working, but now I'm full-time studying. Okay, and let's remember the pattern that number one, you have my lectures. Number two, each lecture is supported by questions. Number three, Yes. each chapter is supported by tests. Number four, there are two books provided in which topic-wise questions are there. Number five, there are full mocks. So this is the hierarchy that we have. So can you tell me, like, what did you follow? What did you know? Or which subject you completely left or halfly left? Or you did lectures, you did not do questions, or you did lectures in a rushed manner? Okay, or stuff like that. Yes, please. Yes, sir. So FSA was somewhere where I did lectures, but it was in a rushed manner. Hmm. And fixed income, I couldn't complete all the lectures. Like the last modules of it, I couldn't complete the lectures of it. Okay. And I couldn't do the revision properly Hmm. because I wasn't able to complete the lectures itself and did not give the mocks properly. So these are the places where I think I fell short in the preparation. So can I assume that towards the end also you were struggling to complete? Yes, sir. So which means that you had your exam on which date? So my exam was on 18th of November. 18th November. Yes, And sir. can I assume that even on the 15th of November you were trying to cover up stuff? So I had left. Fixed income, I thought that what's not done is not done. I'll Hmm. just start revising and doing the mock at least so that Hmm. I can improve the areas where I've learned. Hmm. So I did that, Hmm. but during the end of it, I couldn't complete the fixed, and that was like I was underconfident when I Hmm. entered the exam hall because Hmm. I did not complete fixed income, and Oh, my mock results were also not that great. okay. And you had taken which package? Gold, Platinum, or Platinum Plus? Platinum package. So you didn't have the review classes, fast track. No, sir. But I had taken the fast track batch alag se. Alag se. So in Yes, that sir. case, fixed income, why didn't you do the fast track at least? Sir, because I thought that I won't be able to understand it Okay. properly, like if I go with fast track.
ओके। because the review classes were more of या solving the questions, करेक्ट and करेक्ट करेक्ट। so I was like, I don't have the basic knowledge of it, so I'll get more confused about it. Yeah, but sometimes what happens is that na, if you at the end of the day you are not able to complete something, suppose आप complete नहीं कर पा रहे हैं, so instead of getting into the exam zero by zero, it is better to get into the exam with the question exposure. I don't say that it will help, but it may help, just because of question exposure. It may so happen that you are able to get some knack of it because of the exposure to other topics. सो Yes, sir. कंप्लीटली जब छूटने वाले बारी आए तो कम से कम क्वेश्चन का एक्सपोजर कर लेना चाहिए। ठीक है, या तो फास्ट ट्रैक के थ्रू या जीपीटी के थ्रू। बिकॉज जीपीटी में अगर डालते हैं आप पूछते हैं भाई समझा दे, तो वो लॉजिकली समझाते हैं, समझ में आ जाता है। Yes, sir. सो राइट नाउ द स्टेटस इज दैट आपका 1485 आया है। और Yes. अपने बात कर रहे हैं 21st का, कि 21st को ये डेट है आपका। बीएमएस हो गया था 2020 में। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है एज वाइज भी कि नहीं मेरे को कंप्लीट कर Yes, लेना चाहिए। ठीक है। yes, sir. ओके, वेर आर यू फ्रॉम? I'm from Maharashtra, Yavatmal. ओके, ठीक है। Yes. एफएसए और फिक्स्ड इनकम आपने बोला, किसी Yes, sir. टॉपिक में आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर आए हैं? नहीं सर, बट नहीं। 50% के ऊपर आए हैं। लाइक हर एक इसमें एवरेज क्रॉस हुआ है, फिक्स्ड इनकम और एफएसए में एवरेज क्रॉस नहीं हो पाया। समझ गए। तो क्या होगा कि अगर मान लेते हैं ना आपका फिक्स्ड इनकम और एफएसए में भी सपोज एवरेज पे आ जाता, मान लेते हैं अगर यस फिक्स्ड सर। इनकम एफएसए में भी आपका 50 के ऊपर आ जाता, तो उस केस में आपका स्कोर करीब 1550 या 1560 होता। आप ओके। क्लियर नहीं होते। ठीक है ना? हम्म। जो हम्म। कि फैक्चुअली सेम चीज है, चाहे 1485 में क्लियर नहीं हो या 1560 में। 15 तो अगर अपने यस को सर। क्लियर करना है तो उस केस में टॉपिक्स में, तीन चार टॉपिक्स में 70 80 90 परसेंटाइल के ऊपर जाना पड़ेगा। गॉट यस इट? सर। तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि बाकी टॉपिक्स को यू हैव टू रिकॉल। जैसे क्यूएम है, तो क्यूएम में यू यस हैव सर। टू रिकॉल कि आपने हाइपोथेसिस कैसे किया था, आपने हम्म। रिग्रेशन कैसे किया था। हम्म। ठीक है, कि आपने वो ठीक से किया था, तो फिर उसके इस पे कॉपी में नोट्स देखे। ठीक है, क्वेश्चंस फिर से ट्राई किए, जीपीटी को लेके बैठे क्या हो पा रहा है, या फिर ये है कि मैंने ठीक से किया ही नहीं था सर, फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। एफएसए में डेफर्ड टैक्स कैसे किया, नॉन करेंट हम्म। लायबिलिटीज कैसे किया। तो मैंने हम्म। कोई कोई चीज ऐसी होती है जो अपने को एहसास होता है कि यार इसमें मैं पूरी हॉलो हूँ, हॉलो। तो उसमें मेरे यस को सर। बढ़िया से पूरा क्लास करना पड़ेगा। और कोई चीज में ऐसा यस सर। होता नहीं हॉलो नहीं हुई, भूल गई हूँ, पर उससे हम बढ़िया से किया हुआ है। तो उस केस यस में सर। वो क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फास्ट ट्रैक से टान के या फिर थोड़ा सा पुश करके वो हो जाता है। तो वो यस सर। रिक्वायर्ड है। समझ गए? यस। यस सर। अब इनकेस अपने मई में जाते हैं, मई के एग्जाम में जाते हैं, हम्म। एक तो अपने वो $350 जो है उसका एक्स्ट्रा दे रहे हैं राइट नाउ अभी। ठीक है, हम्म। रिस्क है हम्म। कि बाई चांस नहीं हुआ तो उस केस में वंस अगेन या तो सीएफए छोड़ने का नौबत आ गया, या वापस से मैंने $1000 का। देखो। ठीक है ना? बट फायदा ये है कि मई में अगर देने का सोचते हैं तो आप अभी से टेंशन ले लोगे और आप पूरा दम लगा दोगे। जबकि आप हम्म। अगस्त का लेते हो तो यूजुअली जो हम्म। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप टेंशन उस तरह लेते नहीं हो। तो अल्टीमेटली हम्म। क्या होता है, वो जो अभी स्ट्रेस आए हुए हैं ना आपके नहीं क्लियर होने से, जो आपको मन में सिंसियरिटी आई हुई है, वो धीरे धीरे यस सर। सिंसियरिटी डिप्रिशिएट हो जाती है। बिकॉज यू टेंड टू गेट अदर प्रायोरिटीज इन लाइफ। यू हम्म। अंडरस्टैंडिंग इट इज टिपिकली व्हाट हैपेंस, आई एम सेइंग द फैक्ट ऑफ इट। ठीक है, यस सर। तो बिकॉज ऑफ द फर्स्ट फैक्टर कि आप स्ट्रेस में हो, मेरा मन कर रहा है मे बोलने का, एज फैक्टर को भी हम्म। देख के कि हाँ मे में हम्म। चल जाते हैं। बट बिकॉज ऑफ हम्म। द फैक्टर ऑफ मनी एंड ऑल दैट लग रहा है कि अगस्त पे चले जाते हैं। हम्म। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, इन केस आपको लगता है कि यस सर अभी पूरा स्ट्रेस आया हुआ, आई थिंक आई कैन रियली पिक अप एंड रियली पुट एफर्ट हार्ड। ठीक है, तो आप ये समझिए कि कल कल जो बीता उसमें हमारे पास फ्रेश रजिस्ट्रेशन, नॉट रीअपियरिंग स्टूडेंट्स के फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है 11 हुए थे फॉर मे एग्जाम। हम्म। जो लोग अभी हम्म। चालू करेंगे और मे में देंगे, हम्म। जिनका कुछ भी नहीं हुआ हुआ है। ऑफ कोर्स दे माइट हम्म। बी हैविंग सम बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड तो आपका भी हो गया है अब, ये मानना पड़ेगा ना। लेट्स अज्यूम दैट यस हाँ सर। सर अब मैं सीएफए चालू कर रही हूँ, मेरा बैकग्राउंड है, मेरे को थोड़ा ऑल्टरनेट यस। आता है, मेरे को थोड़ा डेरिवेटिव आता है, मेरे को थोड़ा ये आता है। तो बैकग्राउंड तो आपका है, ये तो मानना पड़ेगा। तो मेरे यस को सर। लगता है डेफिनेटली आपका हो सकता है, देयर इज नो क्वेश्चन कि क्यों नहीं हो सकता है मे में। यस सर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर आपको मैं बताती रहूं कि मेरा हर हम्म। दिन
या हर 2 दिन में क्या क्या कंप्लीट हुआ है, मैंने क्या कर लिया है, वगैरह वगैरह, क्या वो पॉसिबल है क्या? तो आंसर है यस, वो पॉसिबल है। बट ओके। वो पॉसिबल होने के लिए आपको क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा जो डाउट फोरम में आएंगे। मैंने आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको उस पर दिमाग लगा लगा के जवाब देना पड़ेगा। सपोज कोई क्वेश्चन आया प्राइवेट इक्विटी का, आपको याद नहीं है, तो आप प्राइवेट इक्विटी का वो वाला पोर्शन पे जाओगे, आप रिवाइज करोगे, चैट जीपीटी पे जाओगे, दिमाग लगाओगे पूरा का पूरा। हो सकता है आपका उसको 1.5 घंटा लग जाए, पर वो जो दिमाग लगा ना प्रेशर में, वही दिमाग चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक यस है। सर। तो आई विल यस सर। एडवाइज यू टू गो फॉर द मे टर्म प्रोवाइडेड यू आर विथ मी इन माई टीए का यस। ग्रुप में, नया ग्रुप बनाऊंगा टीए का। और उस केस में आपको हर 2 दिन में रिपोर्ट करना है मेरे को कि सर मेरा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अपन एक्सेल शीट शेयर करेंगे, वो एक्सेल शीट पे आप अपडेट करते जाएंगे। एंड प्लस आपका 1-2 दिन माने हर दिन में कम से कम 1-2 डाउट का रिप्लाई सुनना चाहिए कि हाँ ये रिप्लाई कर रही है। ठीक है, तो इन दैट केस यस सर। गारंटीड आप पास है, आप भर सकते हैं। और आपके पास अभी तक 12th फेब है भी। ठीक है, 12th फेब है भी, बिकॉज 12th फेब तक अगर सपोज कॉन्फिडेंस नहीं आया अपने को, तो ठीक है यार, अपने अगस्त का भरेंगे स्टैंडर्ड में, व्हाट इज द इश्यू? ठीक है ना। यस अब सर। 21 तारीख का ये जो तलवार है ना, इस तलवार के अंदर ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बोला हूं, अंडरस्टूड? ठीक है। यस सर। तो आप सौम्या, सौम्या का नंबर है ना आपके पास, यस सौम्या सर का? है। आप उनको है। केवल व्हाट्सएप, आप टेलीग्राम करेंगे या मेरे टेलीग्राम नंबर पे टेलीग्राम करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे कि सर ने मेरे को बोला है टीए में इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो आप मेरे को टीए में इंक्लूड कर दीजिए। गॉट ठीक इट? है आप सर। बस ये यस सर। मैसेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आप लीव कीजिए, पढ़ना चालू कीजिए, डोंट बी इन द मीटिंग नाउ। यस सर। या प्लीज लीव, यस सर। स्टार्ट थैंक स्टडिंग। यू सो मच सर। श्योर, बाय। योर सर नेम इज? जैसे कि ना राघव। राघव, ओके राघव, प्लीज इंट्रोड्यूस योर हाँ सेल्फ, जी। टेल मी व्हाट इज द क्वेरी? सर आई हैव रजिस्टर्ड फॉर मई 2026 ओके, and sir my till date syllabus is completed all the recorded ones only live left. यू हैव रजिस्टर्ड फॉर मे 2026, ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर कंप्लीटेड, ओनली लाइव लेफ्ट, मतलब? सर जैसे कि आपकी सर जो इको के 2 चैप्टर्स बचे सर जो आपने लाइव लेने बस फिस्कल वो और मॉनेटरी पॉलिसी वो बाकी है। यस यस ठीक है, ओके। यस सर एंड सर मेरा टॉपिक्स वाइज टेस्ट में सर अराउंड एवरेज 85% आ रहा है। एवरेज 85% आ रहा है, बहुत बढ़िया। श्योर, हाँ जी। गुड। सर तो बस मेरे को ये है कि सर मैं रिवीजन कैसे आगे, अभी 4 मंथ्स बचे सर, रिवीजन कैसे स्टार्ट करूं मैं अपनी ना। ओके, बहुत बढ़िया। आप रिवीजन करने के लिए हमारी जो 2 किताबें हैं ना, जो घर पे दी गई है आपको, दो यस फिजिकल सर। बुक्स, वो 2 फिजिकल बुक्स को उठाइए और टॉपिक वाइज जो है उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपने नोट्स वगैरह को रेफर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यानी यू आर नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन टू टेस्ट योर सेल्फ, यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन टू प्रैक्टिस, आई रिपीट। ठीक है, तो यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। जब आप वो सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको अधूरा लगेगा कि यार बढ़िया नहीं लिखा है। आप उसका फोटो डालेंगे जीपीटी में, जीपीटी को ठीक से पूछेंगे एलेवन का कॉन्टेक्स्ट देते हुए कि ठीक से बता भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। दैट इज द वे। तो आप अगर वो पूरा का पूरा किताब कंप्लीट कर लेते हैं, जो दोनों बुक्स गई है आपकी, सपोज 1 महीने में, फेब मिड तक या फेब एंड तक, तो इन दैट केस एक बार मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, सुपर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि यार पूरा का पूरा कब्जे में है। ठीक है, यस सर। वंस यू हैव डन दैट, तब तक आपका ये फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी वाला स्टफ जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। सिक्योरिटाइजेशन का आई थिंक लास्ट चैप्टर बाकी हुआ है, जी सर। करेक्ट? वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लगेंगे इनटू, आपका सारा चैप्टर वाइज मॉक्स हो गया? नहीं सर जैसे कि जो स्केड्यूल अभी शुरू टेलीग्राम पे अपलोड होता है सर वो मैं दे रहा हूँ। हाँ, अभी सर वो मई का मेरे हिसाब से अभी सारे नहीं हुए सर टॉपिक्स वाइज टेस्ट ना। ठीक है, तो आप उसके भी तेजी से जाके, मैंने वही, ये लास्ट पे देख लीजिए कि चैप्टर वाइज टेस्ट आपके जरूर से हो जाए। ओके सर। और उसके बाद जो मॉक्स है वो एसएससीआई का पूरा मॉक्स देंगे, उसके बाद पूरा 8 का 8 मॉक्स। उसके बाद ओके आप सर। सीएफए इंस्टीट्यूट जो है उसका मॉक्स देंगे, एडिशनल पीएसएम मटेरियल वाला, जो एडिशनल प्रैक्टिस पैक है वो वाला भी। ठीक है, ओके सर। कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ओके होगी। सर। सर एक ये भी था सर, जो लर्निंग इकोसिस्टम में मॉक्स होते हैं सर वो कब से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। वही बोला, वो आप बाद में दीजिएगा, पहले ओके पहले सर। आप एसएससीआई के मॉक्स देंगे, उसके बाद लर्निंग इकोसिस्टम के, क्योंकि एसएससीआई के मॉक्स चैलेंजिंग है। उसमें आपका स्कोर कम आएगा, आपको थोड़ा सा दुख होगा, आप थोड़ा और प्रेशर डालेंगे। जब तक आप जाएंगे सीएफए के मॉक्स में, उसमें आपका सीधा 85-90% आएगा, तो आपको लगेगा मैं श्योर शॉट पास हूँ एग्जाम बैठने के पहले। ओके सर। ठीक है ना? ओके, ओके। श्योर, थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। या वी गो टू देवांश, देन वी विल गो टू रौनक। देवांश के बाद रौनक। यस देवांश। Hello, sir. हाय देवांश। So my doubt was, I mean, I just got a scholarship for August attempt.
So wanted to know, when can I pay the fees for the same? I need to pay it before 21st, or I can pay it till May? Was the first out. मेरे को ये रेगुलेशंस याद रहते नहीं है. आई नो दैट 21st इज द कट ऑफ डेट. नाउ वेदर इट इज द कट ऑफ डेट ऑल्सो फॉर स्कॉलरशिप कैंडिडेट्स, मैंने बिलीव मी इफ आई कमिट, मैं कुछ ऐसा बोल दूं, आई वुड नॉट लाइक टू कमिट समथिंग विच आई एम नॉट अवेयर. तो आप तो ये चेक कर No सकते हो problem. ना, सीएफए इंस्टीट्यूट Yeah, वेबसाइट पे all जाके right, sir. स्कॉलरशिप का जो लेटर वगैरह आया होगा उसमें पक्का लिखा हुआ Yeah, होगा. got it, sir. है And ना. sir, the main question, yes, हम्म. sir. The main question is, sir, which will be the better for me, the live focus batch one or the simple full immersion one? व्हाट इज योर बैकग्राउंड? Sir, right now I am pursuing my masters. So I have a college from morning 10 o'clock till 8 o'clock evening in the weekdays. So that's the reason. नहीं, then you attend the live focused batch which started today morning. Okay, so that is in weekends only, right? Yeah, yeah, that is weekend only, but obviously you have to study in the weekdays also. If you just wait for the weekend, it For won't sure. happen. Got it. Correct? Thank you, sir. Yes, sir. Yeah, all the best. Thank you. So let's go to Ronak. Ronak, please speak out. और दिवांश आप ड्रॉप कर सकते हो कॉल से. All right, sir. Good Thank you. ड्रॉप afternoon, sir. करो, रजिस्टर करो और चालू करो प्लीज. ठीक है, डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट. प्लीज स्टार्ट. Yes, sir. Yes, sir. Thank या you. रौनक. गुड आफ्टरनून सर. यस रौनक, टेल मी. सर वो मेरे को पूछना था कि जैसे कि मेरा मई में एग्जाम में फिल कर चुका हूँ, हम्म. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में मेरा बैलेंस शीट तक हुआ हुआ है. हम्म. फिक्स्ड इनकम में मेरा जो 8 तक है, जो यील्ड एंड यील्ड स्प्रेड मेजर्स फॉर फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट, हम्म. वहां तक हुआ हुआ है. और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2 तक हुआ हुआ है. हम्म. और क्वांट्स में जो है पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स तक हुआ हुआ है. हम्म. बाकी सब बचा हुआ है, और बाकी जितने टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है. लास्ट का एक एलएम या कुछ कुछ बचा हुआ है. तो सर मेरे को क्या करना एकदम चाहिए, एकदम कैसे लास्ट पे करना जाके चाहिए? एकदम कंफ्यूज हो गया. पहले आपने बोला बाकी सब बचा हुआ है, तो आप बोलना चाह रहे हैं ये जो चार पांच टॉपिक्स आपने नाम लिए उनमें जो बचा हुआ है केवल वही बचा हुआ है और बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट है. हाँ, बाकी सब कंप्लीट है. अगर बचे भी है तो किसी में जैसे लास्ट लास्ट वाला इक्का बस दुक्का एनुअल बचा हुआ बचा है. हुआ है हाँ वैसा. हाँ हाँ हाँ. कोई चिंता की और बात नहीं है, आपका प्रेपरेशन एकदम सही लाइन पे जा रहा है. ठीक है, मतलब हम्म. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को जो यस दिख रहा सर. है कि अगर मैं आपके जगह पे होता तो इन दैट यस केस मेरा सर. टारगेट होता कि मैं सिलेबस जो है यानी कि लेक्चर्स टुगेदर विद चैप्टर के क्वेश्चंस. ठीक है, यस बिकॉज सर. केवल लेक्चर करने से कोई भी जन पास नहीं हो सकता है. मैं रिपीट वापस से कर रहा हूँ, केवल यस सर. लेक्चर्स करने से कोई भी हालत में कोई पास नहीं होगा. थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, केवल लेक्चर्स करने से कोई भी कोई हालत में पास नहीं होगा. लेक्चर्स के साथ क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर का टेस्ट देंगे, तभी जाके पास होंगे. ठीक है, तो मैं ये कोशिश करता कि मेरे जो अभी क्या बोलते हैं फेब के एंड तक एथिक्स को छोड़ के बाकी सब कुछ कंप्लीट हो जाए. फेब के एंड तक एथिक्स को छोड़ के बाकी सब कुछ कंप्लीट हो जाए. ठीक है ना. और यस वर्स्ट टू सर. वर्स्ट अगर ऐसा नहीं हो पाया, बहुत टाइट हो गया, तो इट शुड हैपन बाय मिड मार्च. ठीक है, उसके बाद ओके एसएससीआई का सर. जो दो बुक है ना फिजिकल बुक, वो दो यस फिजिकल सर. बुक को जरूर सॉल्व करे. बहुत बढ़िया बुक है वो, उसके अंदर बहुत बढ़िया से ट्विस्टेड क्वेश्चंस है. वो सॉल्व यस करे अपने सर, आप को. स्टार्ट कर दिया हूँ. या एकदम बढ़िया. उनको उसमें अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और जीपीटी को यस यूज सर. कर रहे हैं. वो उसमें यस पंद्रह सर. बीस दिन 25 दिन बीतेंगे. वो बीतने के बाद जो है फिर उसके बाद आप फुल मॉक सिस्टम में आ जाए. ओके सर. और जो सर सबका क्वेश्चंस भी साथ साथ में करते रहना है ना? एकदम एकदम, इसीलिए मैं 3 बार रिपीट किया था. कोई कोई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि वो लेक्चर्स 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 कर रहे हैं, वो लेक्चर्स 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 करने से होगा नहीं. सो सर ये चारों जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया वो साथ साथ में करना है, जैसे एक दिन दो एक दिन दो, हाँ कि हाँ, पहले एकदम एक को? एकदम एकदम साथ साथ में. ठीक बोले, एकदम साथ साथ में. तो एक ओके दिन में सर. जो काफी बार लेक्चर का ड्यूरेशन तो केवल 45 मिनट्स 1 आवर भी होता है. ठीक है ना. तो एक दिन में एवरेज में 3-4 लेक्चर, एकदम आसान बात है, कोई लिमिट ही नहीं है उसका. और सर जो जैसे आपने क्वेश्चन दिया है पीडीएफ का, तो हम्म. उसको सिर्फ सॉल्व करना इनफ है कि कुछ और प्रीमियम पैक और भी कुछ करना पड़ेगा? मैंने जो क्वेश्चन दिए, मैंने जो दिए हैं उसके अंदर सब कवर्ड है. वो आप सॉल्व कर लो. वो सॉल्व करने के बाद चैप्टर का टेस्ट जरूर दे देना. ठीक है, वो चैप्टर का ओके टेस्ट दे सर. दीजिए. चैप्टर खत्म हुआ तो कोई प्रीमियम पैक नहीं ओके. करना है. पर जब आप मॉक्स दोगे ना, फुल मॉक्स, ओके, यस तो सर. फुल मॉक्स यस देते सर. समय एसएससीआई का 8 मॉक्स दोगे, उसके बाद आपको कैंडिडेट रिसोर्स का मॉक्स और प्रीमियम पैक का मॉक्स मुफ्त का अवेलेबल है टेलीग्राम पे, वहां से देने हैं. ओके सर. ठीक है ना. थैंक यू सर.
रौनक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, चल लेट्स मूव टू आदर्श अग्रवाल। ड्रॉप कर जाओ, रौनक कॉल थे। हेलो, गुड आदर्श इवनिंग। अग्रवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदर्श। सर, मैं एक नॉन एसएसआई स्टूडेंट हूँ सर। कोई बात नहीं, वेलकम। आई एम सो सर ग्रेटफुल दैट आपने मेरे को मौका दिया। यस सर। सर बोलिए। मैंने आपकी पूरी वीडियोस देखी हैं सर, ऑलमोस्ट यूट्यूब हम्म में जो अपलोडेड हैं। हम्म। एंड सर मैं अभी मे अटेम्प्ट में भर चुका हूँ। ठीक है। एंड अभी सर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इक्विटी हो चुका है। ठीक और है। कौन और कॉन्ट्स का सर मेरा टाइम वैल्यू मनी हो चुका है। हम्म और बाकी सर हर सब्जेक्ट का मैं समरी किया हूँ अभी हम्म दिसंबर में। हम्म तो मेरा ये सर कि अभी मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ सर, 8 आवर्स हम्म पर डे दे रहा हूँ, अब स्टार्ट कर हम्म दिया हूँ हम्म जनवरी से। हम्म। तो अभी सर मेरे को क्या करना चाहिए? अभी सर मैं सोच रहा हूँ पहले लेक्चर कंप्लीट कर लूँ, फिर क्वेश्चंस करूँ कि एक चैप्टर होने के बाद उसके क्वेश्चंस करूँ। सर स्ट्रेटेजी समझना था मेरे को। नहीं, हर चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस करना एकदम जरूरी है। मैंने ओके वैसा सर। मत कीजिएगा, पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लो उसके बाद एक साथ क्वेश्चन करूंगा, नहीं। हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस होना जरूरी है। ओके सर। दूसरी बात है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप बोले। सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का पूरा सर बीकॉम किया हूँ मैंने। बीकॉम किया हूँ। यस सर। तो जब अपने ये टॉपिक्स देखते हैं ना सीएफए इंस्टीट्यूट के 10 टॉपिक, यस सर। तो उनमें यस सर। कहीं पे भी ऐसा लगता है कोई टॉपिक पे जो आपको थोड़ा सा डर लगता है कि यार ये वाला थोड़ा झमेला है ज्यादा। सिर्फ सर कॉन्ट्स में। केवल क्वांट्स में। यस सर। और क्वांट्स कितना हुआ है आपका, कितना बोला आपने। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हुआ है अभी। बाप रे बाप, पूरा बाकी है। यस सर। ठीक है। तो मेरा आपसे ये सुझाव रहेगा यस सर। कि कोई भी चीज को बेस को खराब करके अपने को लेवल 2 में एंटर नहीं करना है, L1 तो क्लियर करना ही है। यस तो सर। अगर आपको कभी भी लगे बीच में कि कोई एक टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं, तो इन दैट केस जो पार्शियल टॉपिक होते हैं ना हमारे, जैसे क्वांट का, वो यस पार्शियल सर। टॉपिक जो है वो ले लीजिएगा। बिकॉज इट विल इंश्योर दैट एक तो आप पास हो जाएंगे, और दूसरा बात लेवल 2 में एकदम जोश के साथ एंटर करेंगे। श्योर सर। ठीक है ना। उसके अलावा श्योर मॉक्स सर। वगैरह बढ़िया से दीजिएगा। एंड देखिएगा कि आप, देखिए क्लियर कट है, जब आप मई में एग्जाम दे रहे हैं, आपका अगर जब आप अप्रैल एंड में मॉक्स दे रहे हैं, उसमें आपका कम से कम 75% एक्यूरेसी, इफ नॉट 80% आना चालू हो जाना चाहिए। अगर वो आना चालू हो गया तो आप पास होने वाले हैं। समझ गए, क्लियर कट है। श्योर सर। तब सब मैं अपना सिलेबस सर मार्च एंड तक लगभग कंप्लीट कर सकता हूँ। बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छे। ओके। ओके सर। चलिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस थैंक यू। थैंक सर, यू। मैंने सर आपकी पूरी वीडियोस देखी सर यूट्यूब में सर। अनफॉर्चुनेटली सर मैं ले नहीं पाया था आपका कोर्स, कोई लेकिन बात नहीं, लेवल 2 के लिए सर मैं आप ही करूंगा सर। कोई बात नहीं जी, आपको आप बहुत खुश रहे, एंड ऑल द बेस्ट टू यू, ठीक है ना, इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू, सर। या थैंक यू। सो लेट मी गो टू मनजोत ब्रार। मनजोत ब्रार। हेलो। यस मनजोत, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली ना मैंने मई के लिए आपका पैकेज खरीदा था प्लेटिनम प्लस। ठीक है। लेकिन सर उसके बाद ना मेरे से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी कॉलेज की टाइमिंग वगैरह उसको, और कॉलेज के एग्ज़ाम आ गए थे, तो मैंने ठीक है। सोचा मैं अभी अगस्त में दे दूंगा एग्ज़ाम। ठीक है। और अभी मैंने सर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ठीक है। और सर मेरा एथिक्स कंप्लीट है। हम्म। एथिक्स के सारे टेस्ट दिए हुए हैं मैंने। ठीक है। और मेरा इकोनॉमिक्स जितनी आपने करवाई है उतनी कंप्लीट है, बस फिजिकल पॉलिसी सर मेरी चल रही है। वो इंटरनेशनल हो गया, करेंसी वगैरह। हाँ सर वो हो गया। ठीक उसके है। टेस्ट रह रहे हैं सर, वो टेस्ट नहीं है अभी। ठीक है। और सर मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 4 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है। और कॉर्पोरेट इशूअर सर मेरा कंप्लीट है। ठीक है। और सर इक्विटी कॉर्पोरेट इशूअर के सर जितने 2-3, आई थिंक 2 टेस्ट हैं वो मैंने दिए हुए हैं। ठीक है। और इक्विटी सर मेरे 3 चैप्टर करे हुए हैं मैंने। ठीक है। और फिक्स्ड इनकम के सर मेरे 8th चैप्टर चल रहा है, और मेरे 8 9 to 16 चैप्टर पड़े हुए हैं करने वाले। ठीक और है। टेस्ट मैंने उसके सभी दिए हुए हैं फिक्स्ड इनकम के। ठीक है। और कौन सा रह गया, क्यूएम सर मेरे 5 टॉपिक करे हुए हैं, 5 चैप्टर। हम्म। और उसके 3 टेस्ट दिए हुए हैं। और सर मेरे टेस्ट में एक्यूरेसी 65 to 75 फ्लक्चुएट हो रही है सर। हम्म। कभी 80, एथिक्स में तो मेरी ठीक है 85 80% एक्यूरेसी है। और हम्म। बाकी में जैसे कोई हार्ड टॉपिक आता है तो उसमें 75 65 आ जाती है, मीडियम है हम्म। उसमें 80 to 75 एक्यूरेसी आती है। तो ठीक सर है। मैंने आपसे पहले पूछा था, जब आपने कहा था ये अगस्त में या नवंबर में देना चाहिए एग्जाम, तो आपने मेरे को नवंबर सजेस्ट किया था। ओके।
तो सर अभी मुझे अगस्त में देना चाहिए या नवंबर में देना चाहिए? आप मई के लिए रजिस्टर्ड है क्या सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ? नहीं सर, अभी किसी के लिए नहीं रजिस्टर किया है। रजिस्टर्ड नहीं है। और जी आप ने अपना वो क्या बोला, आप फुल टाइम स्टूडेंट है या जॉब करते हैं? नहीं सर, फुल टाइम स्टूडेंट है। फुल टाइम स्टूडेंट स्टूडेंट। मतलब मेरा कॉलेज ही पूरा हो ही गया है लगभग। हम्म। तो अभी समझ मतलब गए। ये पूरा हम्म। सीएफए को ही अब मैं दे रहा हूँ तैयारी अपनी। हम्म। नहीं ठीक है, मेरे को लग रहा है आपका अगस्त में हो सकता है। और जी अगर जैसे आपने अभी फॉर्म भर के अगर 21 तारीख के पहले करते हैं, तो ऐसे भी जी जब कैश आउटफ्लो होगा तो टेंशन का लेवल और बढ़ जाएगा। जी जी। है ना? तो मेरे को हम्म। लगता है कर दीजिए अगस्त में, कोई बात नहीं है। कर लेते हैं अपन अच्छा, बढ़िया से। है ना? ठीक है सर। बढ़िया से टांगते हैं एकदम। मतलब अल्टीमेटली जाके हर क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, हर चैप्टर जी में जो टेस्ट होते हैं, और जो जी। वो ये 2 किताबें दी गई है, और मॉक टेस्ट अगर दे देते हैं ना, कोई माई का हम्म। लाल अपने को फेल नहीं कर सकता है। ओके सर। और सर ठीक मेरे है? को एफएसए और डेरिवेटिव में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एफएसए मेरा थोड़ा समझ नहीं आ रहा है मेरे को। क्यों, आपका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड सर साइंस बैकग्राउंड है मेरा। हाँ, तो मेरे को लग रहा है मेंटल प्रॉब्लम है। जी बिकॉज सर। कर रहे बहुत एफएसए में बढ़िया से। कोशिश तो। जी। अभी ये जो बच्चा है ना, बिहार से है, कृतिक संथालिया। यस सर। उस बच्चे का 1885 आया है, मतलब ऑल ग्लोबल हाईएस्ट। ठीक है ना? ओके तो सर। क्लास 11 12 में साइंस लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मैं जी उससे सर। पूछा था इंटरव्यू में कि भाई एफएसए को कैसे संभाला। तो उसने बोला कि सर आपने पढ़ाते समय अश्वत्थ दामोदरन का नाम लिया था, कि जी अश्वत्थ सर। दामोदरन जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। एंड क्या बढ़िया से वो मैंने एनालिसिस को पिकअप कर पाए। तो बोला वहीं से मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई मतलब नहीं है कॉमर्स या वो बैकग्राउंड। तो मेरे को ओके सर। लगता है कि थोड़ा सा समय देने की बात और है। जरा सा समय और दीजिए उस चीज के अंदर जो परेशान कर रहे हैं। जी खुलेगा सर। वो, ऐसा क्या बात है अभी? आई डोंट नो। मैंने उससे मतलब आपने किया नहीं होगा। अभी जैसे डेफर्ड टैक्स का 2 सप्ताह पहले डाउट सॉल्विंग क्लास हुआ था पूरा। जी नहीं सर, वो नहीं किया, मैं तो वहां पर पहुंचा ही नहीं हूँ। मालूम है आप पहुंचे नहीं वहां पे। वरना बीच बीच में डाउट सॉल्विंग क्लास हम लोग अनाउंस करते रहेंगे। ठीक है? तो ओके वहां पे सर। क्या होता है कि अगर आप कोई चीज कर लिए हैं और आप उस पर अटक रहे हैं, फ्लुएंसी नहीं आ रही है, तो डाउट सॉल्विंग जी। क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। ठीक है ना? ओके। तो भर दीजिए प्रभु का नाम लेके अगस्त जी का। सर। ओके सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए खुश रहिए। ओके। सो वी मूव टू सोमिल। यस सोमिल प्लीज। सोमिल। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हम्म। और जैन के एंड में सब लेक्चर्स जो अपलोडेड है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम्म। सिर्फ लाइव बचेगा। हम्म। और मैं फैब से रिव्यू क्लासेस करने का सोच रहा हूँ। हम्म। तो रिव्यू क्लास कैसे करूँ? अब पहले कोड रीड करूँ फिर क्लासेस करूँ, या क्लासेस करके फिर कोड रीड करूँ? कोर रीडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। आप सीधा का सीधा रिव्यू क्लास कर सकते हैं, और साथ ही जो दोनों बुक्स है, दोनों बुक सॉल्व कर लिए क्या एसएससीआई की? नहीं, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए सब ऐसे वो प्लेटफॉर्म पे। हाँ, तो आप रिव्यू क्लास जो है वो करेंगे फेब से, उसके साथ साथ आप दोनों बुक खत्म करेंगे। तो ये करने में आपको करीब मिड मार्च, एंड मार्च तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फुल मॉक्स चालू कीजिए। सर मैंने फुल मार्क्स दिए थे अभी। मेरा 80% सिलेबस हुआ था तभी। हम्म। तो मैं 120 स्कोर था। हम्म। और मेरे को मेन प्रॉब्लम क्यूएम में हो रहा है। थोड़ा सा हो सकता है प्रैक्टिस और चाहिए, उसमें क्या इशू है? आपका तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है। जहां आपको लग और रहा है जैसे आप रिग्रेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, या आप हाइपोथेसिस में कर रहे हैं, या मशीन लर्निंग में कर रहे हैं, बिग डेटा क्या चीज में कर रहे हैं, वो आप नोट कीजिए और उसको वापस रगड़ लीजिए। रिव्यू करते समय अपने आप रगड़ा जाएगा वो। ओके। और सर मैं रजिस्टर नहीं किया अभी मई के लिए। आप रजिस्टर नहीं, आप रजिस्टर कर लीजिए मई के लिए। 12 फेब तक डेट है ना, कर लीजिए। 12 फेब तक, उसके पहले कर ले, आप 100% पास हो जाएंगे। ओके ओके। ठीक है ना? चलिए ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। या रोहन गोरे। हेलो यस सर। रोहन बोलिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। मैंने मई के लिए रजिस्ट्रेशन करने का सोचा था, पर मेरा उतना सिलेबस भी नहीं हुआ है और फैमिली में कुछ इवेंट्स चालू थे तो उतना पढ़ाई भी नहीं हुआ था। हम्म। तो मैंने अभी सोचा है कि अगस्त के लिए करूँ। हम्म। आपका पैकेज मैंने मई के लिए आपका पैकेज लिया था गोल्ड वाला। हम्म। तो अभी मेरा सिलेबस अल्टरनेटिव हो गया है पूरा। हम्म। हम्म। उसका रिवीजन चालू था, मतलब हम्म। क्वेश्चन सॉल्विंग।
हम्म डेरिवेटिव्स के लास्ट के 2-3 एलएम बाकी हम्म है। फिक्स्ड इनकम एलएम 5 आपके लाइव लेक्चर्स तक हो गया पूरा। हम्म इकोनॉमिक्स का भी आपका लाइव लेक्चर्स तक हो गया है। हम्म। तो अभी अगस्त का सोच रहा हूँ मैं तो। बहुत अब बहुत ज्यादा ही बाकी है, मतलब हाँ स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे हाँ हाँ। एफएसए पूरा बाकी है, क्यूएम पूरा बाकी है। मैं तो आपको अगस्त एडवाइस नहीं करूंगा, आई थिंक यू शुड टारगेट नवंबर। नवंबर। या मतलब गड़बड़ हो जाएगा, फालतू में फंस जाएंगे, रिस्क हो जाएगा, बहुत पैसे लगे हुए हैं। हाँ, ठीक। दुखी होने की बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में। फर्क तब पड़ेगा जब नवंबर का सोच के आप एकदम प्रेशर कम कर देंगे, पढ़ना कम कर देंगे, सोचेंगे अब तो नवंबर है, तब रिस्क है। तो अब मैं स्टडीज कैसे क्या मैं स्ट्रक्चर आपके क्या करूँ अभी स्टडीज के लिए अभी। स्ट्रक्चर ये है कि लाइव लेक्चर्स तो बहुत कम होते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होते हैं। आपको अपना हाँ स्पीक करना पड़ेगा डेली, आपको 3 या 4 लेक्चर करने का सोचना चाहिए। 3 या लेक्चर हाँ करने के साथ उन लेक्चर्स के साथ जो शेयर हुआ है क्वेश्चन फाइल, वो क्वेश्चन फाइल सॉल्व कीजिए। हर दिन आप तीन हाँ चार लेक्चर करते हैं और साथ में क्वेश्चन फाइल सॉल्व करते हैं, एकदम बढ़िया है, कोई रिस्क ही नहीं है। हाँ, मेरा डेली का 2-3 लेक्चर्स तो होते। हाँ तो 2 3 को 3 4 कर दीजिए। ओके ठीक है, थोड़ा एफर्ट डालिए ना बढ़िया से। ओके ओके ओके। ठीक है, चलिए। थैंक यू। थैंक थैंक यू। ओके। सो यू। मेरा हेलो। मेरा जो है, हाँ एक मिनट एक मिनट। तन्मय, आई एम नॉट गेटिंग द टाइम बिकॉज मेरा 4:45 से देर इज अ सेशन आई हैव, ओके, एंड आई विल नीड अ 5 मिनट्स का ब्रीदर। तो आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द टॉक विद ऑल ऑफ यू, बट आई थिंक मैंने जो 6 7 लोगों से बातचीत की, तो उससे क्वाइट रेंज ऑफ टॉक्स हो गया। उसके बेसिस पे आपको इन्फो करना पड़ेगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम नंबर पे, जो 8697090297 टेलीग्राम नंबर है, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू डोंट हैव। 8697090297, 8697090297। इस नंबर पे आप टेलीग्राम पे ऑडियो डालिएगा, ऑडियो अपना स्थिति का। मैं ऑडियो रात को सुन के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।